Hello everyone, welcome to Road to Cat 99. So this is another set of our DLR 99 series, right? If you have not subscribed to the channel or if you have not seen the past set, I would suggest you attempt all the sets, right? Pause the video, try the set for next 20-30 minutes and then go to the video solution, right? So now we are starting the set and also let's see the questions. Questions अगर किसी को देखने हैं पहले तो you can have a look over the questions also and pause the video and you may answer the questions. But हमारा main motive है कि हम पहले set को solve करते हैं, right? तो set हमारा क्या बोल रहा है? Military has built a total of 36 military installations located in a 6x6 grid. The number given in the cells represent the heights of the installations located in that cell. No two installations have the same height as shown below. ये सारी मेरी heights हैं. ये टावर की 302 हाइट है, इसकी 354 है एंड नो टू हाइट्स आर द सेम. Military officers use drones to deliver shipments from the top floor of one installation to the top floor of another installation. However, the drones have the following limitations. Limitations देख लेते हैं क्या क्या है. The drones can deliver shipments from a taller installation to a shorter installation and not vice versa. Right? तो taller to shorter तो जा सकता है या फिर taller to shorter की जगह मैं लिख लेता हूँ लार्ज टू स्मॉल पॉसिबल है ना. लार्ज नंबर से मुझे स्मॉल नंबर पे डिलीवर करना है या स्मॉल टावर पे डिलीवर करना है तो इट इज पॉसिबल, बट स्मॉल टू लार्ज पे पॉसिबल नहीं है. दिस इज द फर्स्ट पॉइंट. सेकंड पॉइंट है द ड्रोन्स कैन ट्रेवल ओनली वर्टिकली और हॉरिजेंटली अलोंग द सेल्स, राइट? तो ऐसा डायगनली वो ट्रेवल नहीं कर सकते, या तो वर्टिकली करेंगे है ना या फिर हॉरिजेंटली करेंगे, ठीक है. They cannot travel along the diagonals. If a shipment is to be delivered to an installation located in a different row or column, the drone starts moving in the direction of another shorter installation, either along a row or a column, and then changes its direction by 90 degrees to head to its destination. The drone can change its direction multiple times if required. However, the drones have been programmed in such a way that the number of such changes of direction are minimized, and such changes of direction are minimized subject to the other limitations of the drone. ठीक है. अब जैसे फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ से यहाँ पे ट्रेवल करना है, तो डायरेक्टली तो मैं ट्रेवल नहीं कर सकता, तो मैं क्या करूंगा, पहले ऐसे चला जाऊंगा और फिर ऐसे चला जाऊंगा. तो ये नंबर ऑफ चेंजेस हैं, यहाँ पे 1 चेंज हुआ है, तो ये भी मिनिमम ट्राई करेंगे कि ये मिनिमम हो. The drones have been programmed in such a way that they can fly only at the same height. Only when a drone reaches its destination, right? So हम यहाँ पे थे, the drones have been programmed in such a way that they can fly only at the same height. Only when a drone reaches its destination, it lowers its height and lands at the top of the installation of its destination. The drones start from the top of the service installation and cannot change their height. बहुत ही सिंपल पॉइंट है. लार्ज टू स्मॉल में जाएगा, उड़ता उड़ता जाएगा एक हाइट पे और फिर स्मॉल बिल्डिंग पे वो लैंड कर जाएगा. पहले लैंड नहीं करेगा, पहले अपनी हाइट चेंज नहीं करेगा. जब वो वहां पे लैंड करना होगा तभी अपनी हाइट को वो चेंज करेगा. यही बोला उसने. If a drone approaches an installation of the drone and the drone changes its direction by 90 degree and avoid collision with the installation. बहुत ही अच्छा पॉइंट है ना. अब कोई बड़ी बिल्डिंग सामने आ गई तो उसको एक सिग्नल मिल जाएगा and then drone has to change the direction. Before taking off from the source installation, the CPU of the drone decides the route it is going to take subject to other limitations. If multiple routes satisfy, the drone takes a route that requires minimum change of direction. If multiple such routes exist, then the drone randomly takes one of the possible routes. If the CPU of the drone cannot find any route subject to the limitations of the drone, it does not take off and the shipment cannot be delivered from the source to that destination. बहुत ही टेक्स्ट हैवी सेट है, बट टेक्स्ट जितना पढ़ोगे आपको पता लग जाएगा कि इसमें सिर्फ 2-3 ऐसे पॉइंट्स है जो मुझे है ना याद रखने हैं या जो मुझे टेक केयर करने हैं while solving the set. उसके अलावा बहुत ज्यादा कुछ नहीं था इस सेट में. So now all the things depend on the questions given. एक एक करके क्वेश्चंस पे आते हैं. What is the height of the tallest installation that fails to deliver a shipment to any other installation in the same row or column? मतलब एक ऐसा मुझे टॉलेस्ट इंस्टॉलेशन फाइंड करना है जो कोई भी कहीं भी डिलीवर ना कर पाए इन द सेम रो और कॉलम. समझ आया? वो कौन सा होगा? लेट से मान लो मैं ये पकड़ रहा हूं, ये मान लो कोई भी एक इंस्टॉलेशन पकड़ रहा हूं, टॉलेस्ट फाइंड करना है. बहुत सारे हो सकते हैं बट मुझे टॉलेस्ट फाइंड करना है जो कहीं भी डिलीवर नहीं कर पाएगा. मान लो यहाँ पे भी इससे बड़ी बिल्डिंग आ गई, यहाँ पे भी इससे बड़ी बिल्डिंग आ गई, यहाँ पे भी इससे बड़ी बिल्डिंग आ गई, यहाँ पे भी इससे बड़ी बिल्डिंग आ गई. तो ये इधर तो मूव नहीं कर सकता बिकॉज वो अपनी 382 की हाइट पे मूव करेगा. ये अगर बड़ी बिल्डिंग हुई तो इस पे टकरा जाएगा. यहाँ पे भी फिर वैसे ही सेम मूव नहीं करेगा, यहाँ पे भी नहीं करेगा, यहाँ पे भी नहीं करेगा. तो ऐसा मुझे देखना है कि ऐसा कौन सा पॉसिबल ऑप्शन हो सकता है, राइट?
तो लेट्स स्टार्ट विद द मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट अगर मैं क्विकली देखूंगा तो 397 मुझे दिख रहा है। आई थिंक 397 है, बट 397 तो लार्ज टू स्मॉल 323 में जा सकती है, तो 397 तो ऑप्शन नहीं हो सकता, है ना। 397 के बाद लेट से 399, 399 यहाँ पे डिलीवर कर देगा, 379 पे ये भी नहीं हो सकता। 388 यहाँ पे डिलीवर कर देगा, ये भी नहीं हो सकता। और इसके आसपास कौन सी है, 380, 349 पे डिलीवर कर सकता है। 397 वी हैव ऑलरेडी कंसीडर्ड। 382 देख लेते हैं, 382 351 पे डिलीवर कर देगा, ये भी पॉसिबल नहीं है ना। अब 388 379 पे डिलीवर कर देगा, एंड 384 340 पे डिलीवर कर देगा, यहाँ भी डिलीवर कर देगा, यहाँ भी डिलीवर कर देगा, है ना। अब 379 देखो, 379 अगर देखोगे वो 388 पे नहीं जा सकता, क्योंकि उससे बड़ा है। लार्ज टू स्मॉल ही जा सकते हैं, स्मॉल टू लार्ज नहीं जा सकते। ये भी स्मॉल टू लार्ज है, यहाँ पे भी नहीं जा सकता, डायगोनली तो वो मूव कर ही नहीं सकता। तो अगर 379 से मैं कुछ डिलीवर करना चाहूंगा, आई कैन नॉट डिलीवर एनीथिंग, राइट। सो अगर 379 पे मेरा कोई प्रोडक्ट पड़ा है तो वो मूव ही नहीं हो सकता, बिकॉज उसके जो एडजेसेंट बिल्डिंग्स हैं वो सारी लार्ज हैं। तो स्मॉल टू लार्ज मुझे करना पड़ेगा, बट दैट इज नॉट पॉसिबल। सो 379 इज माई आंसर फॉर दिस। 379 इज माई आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कंसिडर द इंस्टॉलेशंस विद द फॉलोइंग हाइट्स, 302 304। इसको मैं इरेज कर देता हूं एक बार। 302, वेयर इज 302, 302, 304, 306 एंड 315। 315 एंड 304 ढूंढने हैं मुझे क्विकली। 30 302 304 306 एंड 315। दिस इज 316, 317, दिस इज 315। ठीक है, तो ये मैंने फाइंड कर लिए। For each of these installation, we define a quantity X as the number of other installations located in the same row or column from which the shipment cannot be delivered to that installation. For which of these installations is quantity X the lowest? एक बार question पढ़ लो। For each of these installations, we define a quantity X as the number of other installations located in the same row or column from which the shipment cannot be delivered to that installation. Right? Question क्या बोल रहा है कि यहाँ पे X क्या है? X वो नंबर ऑफ इंस्टॉलेशन है जहां से मेरा प्रोडक्ट 302 या 304 या 306 या 315 में डिलीवर नहीं हो सकता, है ना। और वो इंस्टॉलेशन सेम रो या सेम कॉलम में होनी चाहिए, वहां से वो डिलीवर नहीं कर सकता मैं स्पेसिफिक टू 302 304 306 और 315। फॉर विच ऑफ दिस इंस्टॉलेशन इज द क्वांटिटी X द लोएस्ट, है ना। X लोएस्ट क्या है, X की मेरी इसकी डिफरेंट इसकी डिफरेंट इसकी डिफरेंट इसकी डिफरेंट वैल्यू आएगी। तो पहले 302 पे देख लेते हैं X की क्या क्या वैल्यू आएगी। अब लेट्स फोकस ऑन 302 फर्स्ट, है ना। सेम रो मतलब यहाँ पे और यहाँ पे। अब 384 तो यहाँ पे डिलीवर कर सकता है, डेफिनेटली कर सकता है। क्या 347 डिलीवर कर सकता है? नहीं कर सकता, बिकॉज 347 के बीच में 384 आ गया, तो एक तो 347 हो गया। क्या 327 डिलीवर कर सकता है? 327 से बड़ी बिल्डिंग 347 आ गई, ये भी नहीं कर सकता। क्या 399 डिलीवर कर सकता है? ये सारी स्मॉल है 399 से, यस ये तो कर सकता है। क्या 379 कर सकता है? नहीं कर सकता, बिकॉज इसमें बड़ी बिल्डिंग आ गई, है ना। बीच में बड़ी बिल्डिंग नहीं आनी चाहिए, छोटी बिल्डिंग को तो मैं पास कर दूंगा। सेम सोचो, जैसे हेलीकॉप्टर उड़ रहा है, ड्रोन उड़ रहा है ना, बड़ी बिल्डिंग आएगी तो वो आगे प्रोसीड नहीं कर पाएगा। यहाँ पे तो यहाँ पे तो डिलीवर हो जाएगा, यहाँ पे डिलीवर नहीं होगा बिकॉज 354 आ गया, यहाँ पे भी डिलीवर नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा बिकॉज सारी स्मॉल बिल्डिंग्स हैं, यहाँ पे भी नहीं होगा। तो मेरी टोटल कितनी आ गई, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे तो एक्स की वैल्यू आ गई मेरी 6। 302 के लिए एक्स की वैल्यू आ गई 6। नाउ लेट्स डू द सेम प्रोसेस फॉर 304। अगर मैं 304 के लिए करूंगा, दिस इज 304, ये और ये तो डिलीवर कर देगा। क्या ये डिलीवर कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, बड़ी बिल्डिंग आ गई। ये भी नहीं कर पाएगा, बड़ी बिल्डिंग आ गई। और ये तो कर देगा क्योंकि सारी छोटी बिल्डिंग्स है। अब यहाँ पे चेक करते हैं, 339 डिलीवर कर देगा, 329 नहीं कर पाएगा, 382 कर देगा, 350 नहीं कर पाएगा, 353 नहीं कर पाएगा। 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे वैल्यू आ गई 5। 304 की वैल्यू आ गई 5। 306 की वैल्यू चेक कर लेते हैं। 306 कहाँ पे है मेरा? 306 ये रहा। 306 पे देखते हैं, ये तो डिलीवर कर देगा। क्या ये कर देगा? यस ये कर देगा। नो, बिकॉज 49 आ गया, उससे बड़ा, इससे बड़े तो बहुत है, इससे बड़ा कोई नहीं है, तो ये तो कर देगा। अब
हॉरिजेंटली देख लेते हैं, 376 कर देगा, 335 नहीं कर देगा, 339 नहीं करेगा, 364 नहीं करेगा, 399 कर देगा। तो 1 2 3 4 5 5 रिस्ट्रिक्शंस है यहाँ पे भी। 5 इंस्टॉलेशंस कैन नॉट डिलीवर द प्रोडक्ट टू 306। अब 315 पे देख लेते हैं, है ना, 315 देख लेते हैं। तो ये रहा मेरा 315। 315 की अगर बात करूँ, 327 तो कर देगा, 329 कर देगा, 389 कर देगा, 380 नहीं कर पाएगा। उससे बड़ी बिल्डिंग ये रही, इससे बड़ी बिल्डिंग ये रही। अब यहाँ पे देख लेते हैं, इससे बड़ी बिल्डिंग तो ये रही, ये भी नहीं कर पाएगा, ये भी ये कर देगा, ये भी कर देगा एंड ये भी कर देगा। तो यहाँ पे 3 है ना। 315 में तो 3 रिस्ट्रिक्शन है। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया? द इंस्टॉलेशन विद द हाइट 315, बिकॉज मुझे एक्स की मिनिमम वैल्यू पूछी थी, तो एक्स की मिनिमम वैल्यू मेरी 315 पे आ रही है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द हाइट ऑफ द व्हाट इज द हाइट ऑफ द shortest installation that can deliver a shipment to at least one other installation in the same row or column? हमने पहले हाईएस्ट पे बात करी थी, यहाँ पे कहीं ना कहीं है ना, that fails to deliver, बट यहाँ पे ऐसी स्मॉलेस्ट इंस्टॉलेशन देखनी है that can deliver to at least one अदर इंस्टॉलेशन। अब यहाँ पे सबसे बड़ा फायदा क्या है, हमारे पास चारों ऑप्शंस है, दैट मींस इन चारों में से कोई आंसर होगा, तो वी विल गो बाय ऑप्शन बाय ऑप्शन। तो सबसे स्मॉलेस्ट ऑप्शन कंसीडर करते हैं, दैट इज 323। 323 देख लेता हूँ पहले मैं। 323 क्या मेरा एक बी को डिलीवर कर पाएगा? वेयर इज 323? 323 323 देखो, 323 मेरा लार्ज टू स्मॉल जाएगा, छोटी बिल्डिंग में जाएगा, तो यहाँ पे तो नहीं जा पाएगा, यहाँ पे भी नहीं जा पाएगा। अगर ये बीच में आ गई तो यहाँ पे यहाँ पे भी नहीं जा पाएगा, है ना। 342 पे भी नहीं जा पाएगा। अगर यहाँ भी यहीं उड़ नहीं सकता तो यहाँ भी नहीं जा पाएगा। 323 380 में भी नहीं जा पाएगा, तो ऑटोमेटिकली यहाँ भी नहीं जा पाएगा। तो 323 तो किसी को भी डिलीवर नहीं कर सकता, तो 323 कैन नॉट बी माई आंसर। नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन क्या है? 327। 327 देख लेते हैं। 327 इज हियर। 327 347 पे तो नहीं जा सकता, लार्जेस्ट है, तो यहाँ पे नहीं जा सकता, यहाँ पे नहीं जा सकता। बट 327 डेफिनेटली 315 पे डिलीवर कर सकता है अपनी छोटी बिल्डिंग पे। यस, तो मिनिमम वन बिल्डिंग पे तो डिलीवर कर ही सकता है ये। तो डेफिनेटली मेरा आंसर क्या हो जाएगा? 327। 327 is my answer for this question. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आउट ऑफ द 36 इंस्टॉलेशंस, हाउ मेनी इंस्टॉलेशंस आर सच दैट दे फेल टू डिलीवर ए शिपमेंट टू इवन अ सिंगल अदर इंस्टॉलेशन? है ना। अब देखो ये क्वेश्चन में क्या है, ये क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया, कॉन्सेप्ट क्या है, बट थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, बिकॉज इंडिविजुअली यू हैव टू चेक फॉर एवरी अदर इंस्टॉलेशन, राइट। तो व्हाट आई सजेस्ट इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस इन द डीएलआर, की लीव दिस क्वेश्चन फॉर द लास्ट, है ना, या तो बिल्कुल पेपर के लास्ट में अटेम्प्ट करो, बिकॉज आपको पता है कि आप आंसर निकाल लोगे, बट इट मे टेक अ लॉट ऑफ टाइम। तो अभी के लिए आप क्या करो, अभी के लिए लेट्स फोकस ऑन दिस क्वेश्चन, है ना। बाय द वे आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 11, बट लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। which of the following options contains heights of the source installation and the destination installation such that a drone starting from the source installation would require a maximum number of change of direction to reach the destination installation? It is known that the shipment was delivered। 353 से 347 उड़ाना है अगर मुझे, 353 से 347, ये मेरा 353 है, यहाँ से मुझे 347 लेके जाना है, और मुझे पता है डिलीवर पक्का हुआ है मेरा प्रोडक्ट, तो पहले 353 से 350 जाएगा मेरा। अब ऐसा नहीं है कि मुझे मैक्सिमम चेंज पूछा है तो मैं मैक्सिमम चेंज कराने की ट्राई करूंगा। हमारा रूल क्या है, हमें चेंजेस तो मिनिमम रखने हैं। अब उस मिनिमम में जो मैक्सिमम है वो मेरा आंसर हो जाएगा। अब 353 से देखो 350 चला जाएगा, बट 382 नहीं जाएगा, तो यहां से चेंज करूंगा मैं, यहां से मैं 350 से 340 कर लूंगा। अब 340 से 384 तो नहीं जा पाएगा, तो 351 भी नहीं जा पाएगा। वेट, 353 से 350 जाएगा, 340 जाएगा, 351 नहीं जा पाएगा, 384 भी नहीं जा पाएगा। ओके, इसमें आर वी मिसिंग सम रूल?
जस्ट गिव मी सेकंड। 340 से वो 351 भी नहीं जा सकता, राइट? 350 से 350 एंड चेंज थ्रू 1 2। आई डोंट थिंक 353 से 347 चला जाएगा, बिकॉज यहाँ पे इट विल नॉट अलाउ, राइट? ठीक है, लेट्स सी द अदर ऑप्शंस फर्स्ट। ये तो कंफ्यूजिंग लग रहा है। 343 से 335 देखते हैं। 343 से 335, वेयर इज 343 से 335? 343 से देखो यहाँ भी नहीं जा सकता, यहाँ चला जाएगा, राइट? या फिर यहाँ चला जाएगा। अभी यहाँ अगर आ गया वो, तो यहाँ भी नहीं जा सकता, यहाँ भी नहीं जा सकता, यहाँ भी नहीं जा सकता, राइट? तो दिस इज नॉट पॉसिबल। तो अगर 343 से यहाँ गया, देन यहाँ नहीं जा सकता, यहाँ नहीं जा सकता। मतलब 343 से 335 तो डिलीवरेबल ही नहीं है, ये तो छोड़ ही दो, है ना? बट यहाँ पे कहीं ना कहीं आई थिंक दिस इंटायर क्वेश्चन इज रॉन्ग, बिकॉज इट इज नोन दैट द शिपमेंट वाज डिलीवर्ड, बट इन रियलिटी शिपमेंट डिलीवर ही नहीं होगी इसमें। तो आई थिंक ऑप्शन और क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है। सो फॉर द टाइम बिंग वी आर अवॉइडिंग दिस क्वेश्चन, राइट? दिस वाज योर सेट। मेन लर्निंग आपको सेट से लेनी है कि ऐसे सेट में, दो इट में लुक वेरी हैवी बिकॉज देयर वाज अ लॉट ऑफ टेक्स्ट, बट टेक्स्ट को पढ़ोगे तो काफी इंटरेस्टिंग सेट बन जाएगा। और आजकल वैरायटी ऐसी ही आती है जहाँ पे जो नए नए टाइप्स के सेट आते हैं कैट में, वेर यू हैव टू फर्स्ट रीड एंड अंडरस्टैंड द थिंग्स एंड देन यू हैव टू प्रोसीड अकॉर्डिंगली, राइट? थैंक यू एंड हैव ए वेरी हैप्पी डे।